welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. As we are practicing the PYQ for the year 2019 for NVS PGT teacher for the subject English, and this is our 10th class. So अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, then the link is given in the description box. We have recently launched a new course for NVS PGT English. In this course, we provide daily 3 to 4 recorded classes. We provide live dot clearing sessions. We provide revision classes. In this course, we provide PDF and MCQ test. If you want to get enrolled to this course, use my coupon code that is Prerna05 to get 5% more discount. Now coming to the question number 91. Choose the correct active voice for the sentence given below. Some people were refused admittance by the security personnel. तो ये जो sentence है, that is some people were refused admittance by the security personnel. इसको हम लोगों को active voice में change करना है. That is we have to choose the correct active voice for this sentence. तो पहला option क्या है? The security personnel refused admittance to some people. दूसरा ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू सम पीपल. तीसरा ऑप्शन क्या है? द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय सम पीपल. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू सम पीपल. सो ये जो पहला ऑप्शन है, दैट इज सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज एडमिटेंस टू सम पीपल. दिस इज नॉट एक्टिव वॉइस. सेकेंड ऑप्शन भी एक्टिव वॉइस नहीं है. थर्ड ऑप्शन भी एक्टिव वॉइस नहीं है. द आंसर इज द सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू some people. The answer will be option number 4, that is the security personnel refused admittance to some people. Now coming to question number 92. Choose the correct passive voice for the sentence given below. क्वेश्चन नंबर 91 में हमें एक्टिव वॉइस करना था एंड क्वेश्चन नंबर 92 में हमें पैसिव वॉइस करना था. तो सेंटेंस क्या है? The students will complete the assignment within an hour. So options क्या है? The assignment will be completed by the students within an hour. दूसरा ऑप्शन क्या है? The assignment should be completed by the students within an hour. थर्ड ऑप्शन क्या है? The assignment will be completed by the students within an hour. And fourth option क्या है? The assignment would be completed by the students within an hour. So the correct option is option number 3, that is the assignment will be completed by the students within an hour. So आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में जाना है? You have to go to the option number 3. The option number 3 is the correct answer. Now coming to question number 93. So question number 93 से लेकर के 96 तक comprehension है, right? So read the passage carefully and answer the following questions. The passage reads, it doesn't appear to be a matter of surprise that a few states have extreme flood hit situations and some wait for the monsoon. If this is all because of global warming worldwide, then it is true also to a greater extent. But there is also a reason which generally men fear to express. The reason is explicit. The ignorance about want and desire. In a country like India, where natural resources are plentiful, the imbalance occurs almost every year. The fact is that requirements are limited for survival, but the wishes of mankind are unlimited. The continuous, hasty, and unlawful use of every natural resource has brought this misfortune on us. The developed countries are the first culprits of this non-judicious use of the elixir of life and destruction of natural forests and green belts. The developing countries have followed the suit, but the monster of pollution and scarcity of other resources is uncontrollable, though it is beyond control now. There is a silver lining to know one's own mistakes and have remedies to it. Perhaps that may save us all. तो हमने ये पैसेज को रीड किया एंड अब हम इसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पैसेज का जो पहला क्वेश्चन होता है वो बेसिकली पैसेज के लास्ट वाले पैरा से लिया जाता है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि पैसेज का पहला क्वेश्चन हमेशा पैसेज के लास्ट वाले पार्ट से लिया जाता है बिफोर
बिफोर पैसेज को स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों का क्या काम है कि यू जस्ट रीड ऑल द पैसेज, राइट। आप लोगों को पैसेज को पूरा कवर करना है, पूरी तरह से पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करना है कि बस हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अरे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एलिक्सीर, ऐसा नहीं करना है कि हम लोग क्वेश्चन में एलेक्सीर देख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्ड एलेक्सीर इन द पैसेज। सो आप लोगों को ये चीजें नहीं करनी है। आप लोगों को सबसे पहले पैसेज को रीड करना है एंड ध्यान दीजिएगा कि पैसेज का पहला क्वेश्चन पैसेज के लास्ट पैरा से लिया जाता है, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एलेक्सीर ऑफ लाइफ इन दिस पैसेज मीन्स। तो बेसिकली ये पैसेज हम लोगों को किसके बारे में बताया जा रहा है? ये पैसेज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों को एक्सट्रीम फ्लड हिट के बारे में बताया जा रहा है, मॉनसून्स के बारे में बताया जा रहा है, हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है, राइट। सो बेसिकली ये जो एलेक्सीर ऑफ लाइफ है, ये जो एलेक्सीर ऑफ लाइफ है, ये जो एलेक्सीर ऑफ लाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ? एलेक्सीर ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है इस पैसेज में? तो एलेक्सीर ऑफ लाइफ का मीनिंग होता है इस पैसेज में वाटर। एलेक्सीर ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है इस पैसेज में? वाटर। क्योंकि फ्लोरा एंड फाउना का इस पैसेज में कोई जिक्र नहीं है, राइट। फॉरेस्ट का वैसा जिक्र नहीं है एंड ऑक्सीजन का भी जिक्र नहीं। बेसिकली ये जो पैसेज है ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ वाटर पे, चाहे वो फ्लड वाटर हो चाहे वो मॉनसून वाटर हो। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ this phrase, that is elixir of life in this passage, means water. Next question में आते हैं। According to the author, the primary remedy of the misfortune of mankind is to। primary remedy क्या है? According to the author, the primary remedy for the misfortune of mankind is according to। किस लिए है ये मिसफॉर्चून क्यों है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज को हमें क्रिएट करना है, राइट। हमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट नॉलेज। यहाँ पे सेव वाटर नहीं होगा, प्लांट मोर ट्री नहीं होगा, कंट्रोल द वेदर नहीं होगा। द आंसर विल बी क्रिएट नॉलेज, राइट। सो ये पैसेज में हम लोगों ने क्या देखा है कि क्रिएट नॉलेज, हम लोगों को ना नॉलेज बहुत जरूरी है क्रिएट करना। इस पैसेज का बेसिक मतलब यही होता है, राइट। इसमें फ्लड हिट सिचुएशंस के बारे में बताया गया है एंड सम पीपल जस्ट वेट फॉर द मॉनसून, एंड ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। एंड द एलेक्सीर ऑफ लाइफ इज वाटर एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्राइमरी रेमेडी फॉर द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड इज क्रिएट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। What does the author want to convey about surprise in the passage? तो surprise in the passage क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो ऑथर है वो सरप्राइज इन द पैसेज उन्होंने क्या बताना चाह रहा है? तो वो चाह रहे हैं कि फ्लड एंड ड्रॉट टुगेदर आए, राइट। वो क्या चाह रहे हैं कि फ्लड एंड ड्रॉट टुगेदर। द फ्लड हिट सिचुएशन वो नहीं चाह रहे हैं। हमने पैसेज पढ़ा, हमने ये समझ में आया कि द ऑथर doesn't want the flood hit situations. He doesn't want only drought. He doesn't want only monsoon. But he just want about the surprise, that is flood and drought together. Now coming to question number 96, that is what is the meaning of the word explicit? Explicit का meaning क्या होता है? तो assumption का मतलब क्या होता है? assumption का मतलब होता है पूर्व धारणा, राइट। पूर्व धारणा। estimation का मतलब क्या होता है? opinion या फिर judgment बोल सकते हैं। obvious मतलब क्या होता है? स्पष्ट। obvious मतलब क्या होता है? स्पष्ट। and pre-assumption का मतलब क्या होता है? संभावना, राइट। so the meaning of the word explicit is clear. तो explicit का मतलब क्या होता है? obvious. Now coming to question number 97. One thing, question number 97 से लेकर के question number 100 जो है वो भी एक पैसेज है, बट ये different passage है. Now we are going to read the passage, that is, few years ago we often talked about an age of technology that has surrounded us. Computers and modern means of communication have brought in an unsurpassable change in human life. Every next day, technology of common kind is available at a cheaper rate, and we are using it every day. It is today that we have pushed ourselves into the age of artificial intelligence.
where human emotions are captured by smart devices and preferences are set in a moment. Right from a simple thought of having a cup of tea या फिर taking a warm water shower and listening to favorite song do not need human intervention. Thoughts are automatically transmitted to a core device that further operates on other gadgets and machines. Alexa, a voice controlled intelligent personal assistant service has changed our lifestyle. Sophia is a social robot that uses AI to see people, understand conversation, and even form relationships. Moreover, it has the ability to learn from one experience and apply that knowledge to new situations. It is the similar way that humans learn to do in their life. It seems that they will not be so far when technology and robots will be able to govern human life completely. The debate is unending. ये बहुत ही अच्छा सा पैसेज है राइट इसमें हमारे जो टेक्नोलॉजी है एंड इट इज ग्रोइंग सो फास्ट उसके बारे में हम लोगों को बताया गया है. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, दैट इज what do you understand by AI in the context of the passage? तो अभी मैंने ये चीज को रीड किया था, that is active interest, artificial intellect, assist inferences या फिर artificial intelligence. इस पैसेज में हमने अभी जस्ट रीड किया था यहाँ पर artificial intelligence, artificial intelligence. तो AI का मतलब क्या हुआ यहाँ पर इस पैसेज में? तो artificial intelligence. The answer will be artificial intelligence. Now coming to question number 98. What does the author indicates when he says that technology is cheaper? यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं? हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि टेक्नोलॉजी इज चीपर, राइट? तो यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं? इस पैरम में हम लोग इस पैसेज में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज चीपर का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट इज अवेलेबल एट चीपर रेट्स, अवेलेबल एट चीपर रेट्स एंड वी आर यूजिंग इट एवरी डे. तो यहाँ पे चीपर का मतलब क्या हुआ? इस वाले क्वेश्चन में चीपर का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी चीपर का मतलब क्या हुआ? क्या इट इज कंटिन्यूअली ग्रोइंग या फिर इट इज ब्रॉट विथ हाई प्राइस, इट इज कॉमन या फिर इट इज अवेलेबल फॉर फ्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज कंटिन्यूअली ग्रोइंग, राइट? तो आंसर क्या होगा? इट इज कंटिन्यूअली ग्रोइंग. सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? What is the meaning of unsurpassable in the passage? Unsurpassable हमने पैसेज में रीड किया था, दैट इज यहीं पर थर्ड लाइन में ही है अनसरपासेबल, थर्ड लाइन में ही है अनसरपासेबल. तो अनसरपासेबल का मतलब क्या होता है? क्या अनसरपासेबल का मतलब फ्रीक्वेंट होता है या फिर क्विटस होता है या फिर पियरलेस होता है या फिर कॉमन होता है? फ्रीक्वेंट मतलब आप लोगों को पता है लगातार. फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? लगातार. ये नहीं होगा. यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? बहुत आम, यानी कि हर जगह पाए जाने वाला, राइट? सो क्या यूबिक्विटस होगा? क्या पियरलेस हो सकता है? पियरलेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न. पियरलेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न. एंड अनसरपासेबल का मतलब क्या होता है? अनसरपासेबल का मतलब क्या होता है? अद्वितीय. अनसरपासेबल का मतलब होता है अद्वितीय. तो व्हाट कॉमन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कॉमन है, बहुत ही आम है. तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसरपासेबल इन द पैसेज? सो द आंसर विल बी fearless. The answer will be fearless. Now coming to question number 99, that is, what ability of robot does the author talk about? What ability of robot? यानी हम लोगों ने इस पैसेज में एलेक्सा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सोफिया के बारे में पढ़ा. सोफिया के बारे में आप लोगों को सबको पता ही होगा कि सोफिया एक रोबोट है एंड शी जस्ट आंसर्स ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेरी कंफर्टेबली, राइट? आप लोगों को लगेगा नहीं कि शी इज जस्ट अ रोबोट. सो व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ रोबोट डज द ऑथर टॉक अबाउट? तो एबिलिटी क्या है उन रोबोट्स में? एबिलिटी टू लर्न. द आंसर इज एबिलिटी टू लर्न. एबिलिटी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस सिर्फ नहीं हो सकता है,
एबिलिटी टू मेक टी एंड डू हाउस होल्ड कोरस, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एबिलिटी टू टेक डिसीजन, ये भी नहीं होगा। सो इसमें क्या होगा, इसका आंसर एबिलिटी टू, तो इसका आंसर क्या होगा, एबिलिटी टू लर्न। सो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली दो पैसेजेस देखे, राइट, दो पैसेजेस देखे एंड फ्यू ग्रामर के क्वेश्चन देखे। इनसे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिटरेचर पार्ट के किए हैं एंड आज वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, यानी कि हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया एंड इन 10 क्वेश्चंस में हमने दो पैसेजेस देखे एंड फ्यू ग्रामर्स के क्वेश्चन देखे, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।